हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैप। स्टूडेंट्स, आप में से वो सारे लोग जो नबार्ड 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि मैम क्या नबार्ड 2025 के लिए एडुटैप कुछ कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। सो ये स्टूडेंट्स, डेफिनेटली देयर आर टू कोर्सेज व्हिच आर देयर फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नबार्ड 2025. Gold course and silver course. In the gold course, you are going to get phase 1, phase 2 preparation guidance and also the interview guidance. In the silver course, however, you will get all the components for phase 2 and interview covered, right? So these are the two courses. Now let me show you what all are going to be the deliverables and how you can utilize them to make your preparation even better and how to use them effectively, right? So first of all, let me show you that this is the gold course. In the gold course and also in the silver course, the first thing which we are going to provide you is how to start your preparation. Now, what is this component? So basically, students, when we start our preparation, the one thing which most of us lacks, it is the study plan. We don't have a proper study plan to follow. We don't have a proper roadmap to follow, right? So in this component, we are basically providing you a day-wise, a month-wise study plan. So there is a 9-month study plan. There is a 6-month study plan. You can choose the plan whichever suits you, right? Whichever suits your time which is available to you, whichever suits the time which is left with you, right, as far as the exam is concerned. So according to your circumstances, you can choose any of the plans. Now let me quickly show you the 9-month plan which is over here. So in this 9-month plan, what all are you going to get? First of all, there is going to be a week-wise timetable. So what you can cover in what weeks. So from week 1 to week 17, right, you can study ARD, studying 2 hours per day, right? If you are devoting 2 hours per day, then in around 17 weeks, you can cover the ARD. And this is a 9-month study plan, remember that, right? So students, that is how we are providing you the study plan, right? So to make sure that you have a proper guidance, you have a proper plan and you are studying things consistently in a planned manner, we are providing you this component, that is how to start your preparation, right? Now let me take you further into the course. The next component is the current affairs. As we all know that current affairs is very, very important, and we are going to provide you the current affairs in a thematic manner. Now, what is this thematic manner? See students, we have magazines for different themes, right? So for schemes, we have Scheme Step magazine, then we have Report Step magazine for reports, and we have Current Step magazine for ESI related, for finance related current affairs. Then we have the Miscellaneous Report magazine. RBI News Step is also there, but it is not very relevant for the NABARD students. Then we have the miscellaneous reports and magazines, latest union budget and survey, Agri Current Step magazine for all the agriculture related current affairs. There is Agri Current Step magazine and Agri Report Step magazine for all the agriculture related reports. So the NABARD annual report, the Ministry of Animal Husbandry annual report, right? So all these reports which are related to the ARD, which are related to the agriculture part, they are covered in the Agri Report Step magazine, right? So these are all the deliverables. And also student, when you are covering the current affairs, how you have to cover them and how you can best utilize these magazines is that first of all, try reading this, right? So you have to read the magazine first, right? So here we are providing you the scheme step from 8th to 12th of October, right? Once you are done with this magazine, you have read it, you have learned the facts, then a quiz is also available, right? I request you that whenever you finish reading any particular document, do attempt the quiz as well, ठीक है? उसी वक्त आप quiz attempt करके देखिए to make sure कि जो आपने पढ़ा है, क्या आप उसे apply कर पा रहे हैं, क्या वो आपको ठीक से समझ आ गया है, ठीक है? So to make sure that you are not missing out on anything, quiz is also provided with each and every current affairs document, right? So that is how current affairs is being covered here. Now let me take you to the next part, that is the quant, reasoning and English, ठीक है? Quant, reasoning, English कैसे cover होंगे? सबसे पहले for each and every chapter, okay, even before we go to the chapter, it becomes very, very important to know the trends of any particular component. अगर मैं reasoning की बात करती हूँ, तो reasoning में किस तरीके के questions आ रहे हैं, कौन से most important topics हैं, क्या difficulty level रहता है paper का, और कैसे आप prepare कर सकते हैं reasoning को. ये सारे questions बहुत important होते हैं किसी भी component की तैयारी start करने से पहले, and therefore we provide you with the orientation video, right? So first of all, we have the orientation video as far as the NABARD exam is concerned.
concerned. Then for each and every chapter we provide the concept classes. Now in these concept classes your concepts will be built up from the basic to the advanced level, and these concept classes also include these new pattern questions. ठीक है, यहाँ पर आपको new pattern के questions भी मिलेंगे, क्योंकि हर साल हम जो देखते हैं कि एवरी ईयर ऑन ईयर बेसिस जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर का वो बढ़ता जा रहा है, तो उस डिफिकल्टी लेवल को टैकल करने के लिए जो ये न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पर इंक्लूड करे गए हैं. एंड देन द सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर आल्सो देयर, सो टू मेक श्योर कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो नबार्ड के ट्रेंड्स के साथ इंक्लाइंड है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद. उसके बाद आता है सबसे जरूरी पार्ट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का, एंड दैट इज प्रैक्टिस. किसी भी कॉन्सेप्ट को आपने कितना बेहतर तरीके से समझा है और आप उसे कितना बेहतर अप्लाई कर पा रहे हो, उसके लिए जरूरी है क्विज, द प्रैक्टिस पार्ट. इन क्विजेस को सॉल्व करके आप वहीं पर उसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको इनफ तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो. सो दीज आर द डिलीवरेबल्स व्हिच आर गोइंग टू बी देयर इन द क्वांट, इन द रीजनिंग एंड इन द इंग्लिश कंपोनेंट. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. उसके बाद में आते हैं कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग. ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हमारे डिलीवरेबल्स क्या क्या होंगे. अगेन फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर सबसे पहले तो ओरिएंटेशन वीडियो ही आ जाती है. उसके बाद में आता है कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स, देन समरी शीट फॉर द रिवीजन पर्पस एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड क्विज. हर एक चैप्टर वहीं पर प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए क्विज चैप्टर वाइज प्रोवाइडेड है. ठीक है, देन वी हैव द डिसीजन मेकिंग, सिमिलर डिलीवरेबल्स डिसीजन मेकिंग में भी होंगे. ठीक है, उसके बाद आता है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, दैट इज द ESI एंड ARD स्टैटिक. ये कंपोनेंट्स किस तरीके से कवर किए गए. अगर मैं बात करूं यहाँ पर ESI कंपोनेंट की, तो सबसे पहले ओरिएंटेशन वीडियो, उसके बाद चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का ओरिएंटेशन नोट कि वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी वेटेज रही है, हर एक पार्ट वहां पर एक्सप्लेन किया जाता है. देन वी हैव द कॉन्सेप्ट क्लासेस. After concept classes there are concept notes, summary sheets for last minute revision. ठीक है, for the revision purpose. last minute revision के लिए we have the mind map. जब एग्जाम से एक दिन पहले होता है कि सारी चीजें जल्दी से कैसे रिवाइज हो जाएं, तो उसके लिए mind maps are there, solved previous year questions are there, descriptive model question and answers are there. very very important. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब अपना स्टैटिक पार्ट कवर करते हैं तो उनका सारा फोकस जो होता है वो फेज 1 एग्जाम पर होता है, फेज 2 कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है. बट स्टूडेंट्स फेज 2 इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और फेज 2 के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है इट इज द किंग मेकर. टू मेक श्योर कि इस पार्ट पर आप बिल्कुल भी ढीले ना हो, आपकी प्रेपरेशन बिल्कुल भी ढीली ना हो, इसके लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो प्रोवाइडेड होते हैं. आप डिस्क्रिप्टिव अपना जो फॉर्डर मटेरियल है वो इस डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो, और अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से क्या प्रोबेबल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारी प्रिपरेशन आप यहां इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से कर सकते हो. उसके बाद द क्विज इज आल्सो प्रोवाइडेड यू हियर. ठीक है, कि क्विज का जो पार्ट है चैप्टर वाइज उस चैप्टर को वहीं पे ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्विज जो है ये भी यहां पर प्रोवाइडेड है. तो यही सारे डिलीवरेबल्स ESI में है और यही सारे डिलीवरेबल्स चैप्टर वाइज आपको ARD में भी प्रोवाइडेड होंगे. राइट, नाउ लेट अस सी again a very important component for the phase 2 which is the descriptive English. descriptive English के अंदर मेजरली जो सिलेबस हमारे पास है उसके अंदर essay होता है, प्रेसी होता है, लेटर राइटिंग होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग होती है, तो ये सारे कंपोनेंट्स वहां पर होते हैं. As a part of this course, you are going to get concept classes, the descriptive fodder material. अगर essay के लिए आपको concept classes हैं जहां पर नरवीर सर आपको टेक्निकलिटीज बताएंगे कि एक essay कैसे लिखना है, फ्लो कैसे मेंटेन करना है, तो वहीं पे साथ के साथ आपको fodder material भी प्रोवाइडेड होगा कि आप जो भी essay लिख रहे हैं उसके पास उसको सिर्फ लिखने की टेक्निक काफी नहीं होगी, जो कंटेंट होगा वो डिस्क्रिप्टिव fodder material में आपको मिलेगा. उसके बाद we have the solved previous year questions as well, right? Similarly for the pressy, for the reading comprehension, for letter writing, for report writing, and then there are tests as well. They are the practice tests as well, and then students further on we have the essay topics and the fodder material. ठीक है, क्या प्रोबेबल essay topics हो सकते हैं और उन topics का जो fodder material है वो यहाँ पर provided है. Remember students, टाइमली ऑन क्वार्टरली बेसिस ये सारा फॉर्डर मटेरियल जो है वो अपडेट भी किया जाता है. राइट, सो दीज ऑल आर द डिलीवरेबल्स एज फार एज द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज कंसर्न. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं.
उसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमने पढ़ तो सारा लिया फेज 1 और फेज 2 के लिए भी, अब हम इसे प्रैक्टिस कैसे करने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए फेज 1 में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों के लिए 10 सेक्शनल टेस्ट जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके बाद एज फार एज द फेज 2 एग्जाम इज कंसर्न, देयर आर गोइंग टू बी 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 5 फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड 5 फॉर ESI एंड ARD, राइट। सो ये सारे डिलीवरेबल्स होंगे। इसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स को एनालाइज करना, ट्रेंड्स देखना। तो इसके लिए 2017 टू 2024, ठीक है, 2017 ऑनवर्ड्स सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका एनालिसिस, उनका सोल्यूशन जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड होगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स देयर इज अ वीकली मेंटर टॉक एज वेल, ठीक है। अब ये मेंटर टॉक क्या है, देखिए, अगर प्रेपरेशन के टाइम पे आपको कोई भी इश्यू आता है, आप 1-on-1 बेसिस पे डायरेक्टली वीडियो कॉल पे, वीडियो चैट पे आप अपने इन डाउट्स को रिजॉल्व करा सकते हो ऑन 1-on-1 बेसिस। और ये जो मेंटर टॉक होती है ये वीकली बेसिस पे होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द लाइव क्लासेस एज वेल। अब ये लाइव क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, देखिए, फेज 1 की लाइव क्लासेस नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट होंगी और फेज 2 की लाइव क्लासेस फेज 1 एग्जाम के बाद स्टार्ट होंगी। तो ये शेड्यूल होगा लाइव क्लासेस का, ठीक है। उसके बाद आपके मन में एक बात आ रही होगी कि मैम अगर कोई डाउट आता है तो कैसे रिजॉल्व कराएं। देखिए, डाउट रिजॉल्व कराने के आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला, अगर आप कोई भी चैप्टर ओपन करते हैं, जैसे ये मैंने एक चैप्टर ओपन किया, अगर इस कॉन्सेप्ट क्लास में आपको कोई भी डाउट होता है तो यहाँ एक कम्युनिटी है, डिस्कशन फोरम। इस डिस्कशन फोरम के अंदर आप अपना डाउट लिख सकते हैं दैट हाई व्हाट शुड बी, लाइक समबडी नेम्ड अग्रवाल हैज रिटन, हाई व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स इन केस ऑफ लेस टाइम, राइट। So our faculty they are going to answer it within a day's time, ठीक है, within 24 hours आपका ये डाउट जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, राइट। So here as you can see the person they have provided them with the solution, right। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये सोल्यूशन मेरे लिए इनफ नहीं है, हाउ टू डू बेटर, अगर आपको अभी भी आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं होती है, देन एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एक कैलेंडरली कॉल होती है अगेन, जिसपे आप 1-on-1 अपने मेंटर के साथ बात करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करा सकते हो, ठीक है। अगर अभी भी आपको लगता है कि मैम ठीक से क्वेरी आंसर नहीं हुई है, अभी भी मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, देन देयर इज द थर्ड प्रोविजन ऑफ स्ट्रैटेजी कॉल एज वेल। आप फोन पर डायरेक्टली अपने मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। जिस भी फैकल्टी के साथ, जिस भी टीचर के साथ आप बात करना चाहते हो, स्ट्रैटेजी कॉल पे आप उनके साथ बात कर सकते हो। सो दिस इज द एंटायर वे ऑफ गेटिंग योर क्वेरीज रिजॉल्व्ड एज फार एज दिस कोर्स इज कंसर्न। सो आई होप स्टूडेंट्स अब आपको पूरा कोर्स, उसके डिलीवरेबल्स, उसको कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। So these are the courses. If you are interested, please do visit edutab.in and there you can purchase these courses. And on this note, I take a leave from you and I wish you all the very best for your 2025 preparation, students.